Hey everyone, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you guys. I welcome you all to this session. It is going to be an amazing, a new kind of session for each and every one of you, and we are going to prove a lot of very obvious things. As obvious as 2 plus 2 plus 2 is equal to 3. You must have seen this in the thumbnail. And of course, there are a lot of other standard results that we use in binomial theorem, a lot of standard things that we use in binomial theorem, and we are going to prove them in a very unique way. These are combinatorial arguments, and these are purely valid proofs as far as subjective exams like RMO, ISI is concerned. And इनको of course तुम JEE के अंदर use कर सकते हो for broader understanding of the things, right? So this topic is going to increase your broader level of understanding as far as combinatorics is concerned. So let us get started. I'm Avi Mahajan, done my engineering from IIT Roorkee, and you know all about this. Important चीज है ये Telegram ID, इसको तुम note कर सकते हो, and you can connect it to me over Telegram for any kind of help related to mathematics, particularly Olympiads. And yes, ये हमारा playlist है बच्चों. इस ईयर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रहा है, जिसके तहत तुम ये देख रहे हो. ये लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट है, लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट है. दिस इज द टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेलिस्ट. प्रीवियस ईयर प्री आरएमओ, प्रीवियस ईयर आरएमओ, इनमो बेसिक्स. सो एवरीथिंग हैज बीन organized in a standard fashion and very helpful manner in front of you, and this is all there in the description. You can check the description of any of the videos which are running this year in Maths Olympiad, and you will find everything in great detail in those description. ये हमारे shining stars हैं. These are the students who have made us proud. These two students were a part of regular batches of Vedanta Olympiad School. This was Sumran, who was a part of INMO and RMO batch, and Prakash was a part of our RMO batch. They're both representing Nepal this year. These two students have made us proud. They're representing India in International Chemistry Olympiad, and Dhruv is representing Indian physics, and not only representing Indian physics, of course that competition is going to be held in Tokyo, but again he's made us proud already by winning a gold at Asian Physics Olympiad. We are so proud of him. And okay, ये important चीज़ है बच्चे, कॉमेटोरिक्स का कोर्स शुरू हो गया है. इनफैक्ट ऑफिशियली ये स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, बट पहले 3 लेक्चर्स हम एडिशनल दे रहे हैं सब बच्चों को. तो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग कॉमेटोरिकल गेम्स, राइट? सो पजल गेम्स, थॉट पजल जिसको हम बोलते हैं क्लासेस के अंदर, wherein we are going to discuss some amazing puzzles which are going to develop that thought process, right? तो वो 3 लेक्चर्स उसके एडिशनल मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स. तो जो बच्चों ने कोर्स ले लिया, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी attending those puzzle workshop which is going to happen in the first 3 days of this official course is going to start from July 1. पहले 22 जून को होना था, अब वो जुलाई 1 हो चुका है. एंड पहले 3 लेक्चर्स, एडिशनल लेक्चर्स, ऑप्शनल लेक्चर्स, कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर्स will be for thought puzzles which are going to increase your broader level of understanding as far as combinatorial is concerned. So we'll be covering the combinatorial in great detail. So these are the topics that we are going to cover. And again, of course, this topic is not only going to help you with IOChem, but also is going to help you really well in exams like JEE and also other exams in life like CAT, CSAT, GRE, GMAT if you want to go abroad. Right, so these are the highlights: 21 live lectures, plus 3 RMO thought building, plus 3 additional thought puzzles lectures. Right, so total of 327 lectures का course हो गया ये. Basic to IOChem level, complete combinatorics with most important PYQs. Additional topics, PHP, invariance, coloring techniques are going to be there, and it is going to be very helpful in JEE, ISI exam. 3 tests are going to be there. 3 additional RMO thought building lectures, ये पहले ही बता दिया, and first 3 classes are going to be thought process in addition to this. So 21 plus 3 RMO lectures plus 3 thought puzzle classes. Right, so this is there in the description box. You can buy this Combinatorical 2023 batch for 2,700 rupees. The coupon code is ABMPRO, which gets automatically applied. All right, so combinatorial arguments. अब क्या है combinatorial arguments? कैसे हम इसको use करते हैं to prove and disprove things and to increase the knowledge of combinatorics in a different way. Right, so let us get started and do a very obvious thing, which is 2 plus 2 plus 2 is equal to 2 into 3. Right, so this is very obvious, sir. ये तो हमने 4th क्लास में, 3rd क्लास में maybe या 2nd क्लास में पढ़ा था. अभी क्यों पढ़ा रहे हो? अब देखो, इसी चीज को हम एक बहुत अजीब, बहुत नए तरीके से प्रूव करने वाले हैं. एंड
तो इसी का ही, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ आर्गुमेंट्स विद यू यूजिंग दिस. सो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 3 × 2. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कर लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू को राइट हैंड साइड से को इक्वेट करेंगे बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ. ठीक है, एक सिचुएशन हम सोचेंगे विच इज अ वैलिड सिचुएशन एंड उसी सिचुएशन को दो तरीकों से काउंट करेंगे. विल काउंट दैट सिचुएशन इन टू डिफरेंट वेज, टू वेज. एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आएगा और एक तरीके से राइट हैंड साइड आएगा. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रूव दिस एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं. राइट, आई हैव टू फॉर्म अ 2 letter word. Two-letter word. The choices with the first letter are A and B, and the choices with the second letter are X, Y. चलो A B C कर देते हैं. The choices with the first letter are A B C. यहाँ पे A B C आ सकता है एंड यहाँ पर X और Y आ सकता है. सो ऐसे कितने टू लेटर वर्ड्स बन सकते हैं. नाउ राइट हैंड साइड इज फेयरली सिंपल. सर राइट हैंड साइड तो बहुत ही सिंपल है. राइट हैंड साइड basically I have to form a 2-letter word. The first letter can be filled in 3 ways. The second letter can be filled in 2 ways. फर्स्ट लेटर को 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं, दूसरे लेटर को 2 तरीकों से फिल कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज गोइंग टू बी 3 × 2, दैट इज 6 वेज. नाउ हाउ डू वी फॉर्म द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को कैसे मैं काउंट करूं. सो इसी तरीके को दूसरे तरीके से काउंट करते हैं. सो बेसिकली इफ आई फिल द फर्स्ट लेटर ए हैज एग्जैक्टली 2 choices. A can be followed with X, A can be followed with Y. Similarly, if the first letter is B, it has 2 choices. The first letter is C, it has again 2 choices. So again I said that same thing on the left hand side can be written as 2 + 2 + 2. So total number of 2-letter words which can be formed such that the first letter is A, B or C, the second letter is X or Y will be 2 + 2 + 2 because इसको हमने कैसे काउंट किया, हमने फर्स्ट लेटर को फिक्स कर दिया. A के साथ 2 choices, B के साथ 2 choices, 3 के साथ 2 choices, C के साथ 2 choices. एंड राइट हैंड साइड में किस तरीके से कर रहा हूं. देयर आर 2 वर्क्स टू बी डन. पहला काम 3 तरीकों से हो सकता है, दूसरा काम 2 तरीकों से हो सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 3 × 2. सो क्लियरली 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 3 × 2. सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी 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 यूनिक वे ऑफ प्रूविंग दिस. तो ये एक शुरुआत है. अब हम पूरा का पूरा लेक्चर इन्हीं आर्गुमेंट्स के इसी तरह के आर्गुमेंट्स, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बट इसी तरीके के आर्गुमेंट से करने वाले हैं. एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर 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 इंटरेस्टिंग सेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. लाइक फटाफट से कर देना. ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन फॉर द सेकंड क्वेश्चन व्हिच सेज NCK इज इक्वल टू n - 1CK - 1 + n - 1CK. तो मुझे इस चीज को प्रूव करना है. एंड ये बहुत ही ऑब्वियस, दिस इज अ वेरी कॉमन रिजल्ट. दिस रिजल्ट इज एक्चुअली टू बी रिमेंबर्ड. तो ये रिजल्ट ऑफ कोर्स हम जेई एस्पिरेंट्स वालों को याद करवाते हैं दैट n - 1CR - 1 + n - 1CR इज NCR. ठीक है, सो n - 1CR - 1 + n - 1CR इज NCR. ठीक है. अब देखो किस तरीके से कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट, एक सिचुएशन सोचते हैं जिसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उस सिचुएशन के जरिए हम प्रूव कर सकें. Now NCK is very 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 important hint for all of us. NCK तो बहुत obvious है यार. सिचुएशन क्या है, there are n objects in the supermarket. ठीक है, n objects in a supermarket. OK + 1, OK + 2 and so on up to ON. n objects in a supermarket and we need to select exactly K. We need to select exactly K. So there are n distinct objects in a supermarket और हमें K को select करना है. तो of course this can be done in NCK ways. तो left hand side is sorted. अब राइट हैंड साइड मुझे सोचना है कि यार सेम सिचुएशन को किस तरीके से अलग तरीके से काउंट करूं सो दैट मुझे ये 2 टर्म्स मिल जाए. n - 1CK - 1 + n - 1CK. अब गाइस देखो राइट हैंड साइड को प्रिंट करने के लिए ऑफ कोर्स मैं क्या करता हूं, इसी चीज को हम 2 तरीकों से काउंट करते हैं. केस 1 राइट हैंड साइड. Case 1, O1 is selected. कोई भी एक ऑब्जेक्ट O1 is selected and case 2,
O1 is not selected. भाई अगर n में से k ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो यार कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लो। यार ऐसा हो सकता है कि यार NCK में O1 सेलेक्ट हो या फिर O1 सेलेक्ट ना हो, इन दोनों केसेस कंडीशन ये होना चाहिए। अगर O1 सेलेक्ट है ऑलरेडी, इफ O1 इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, देन कहने से अगर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे टोटल k करना थे, तो मुझे अब n-1 से k-1 सेलेक्ट करना है, बिकॉज O1 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। अगर O1 सेलेक्ट नहीं हुआ, इफ O1 इज नॉट सेलेक्टेड, अगर O1 सेलेक्ट नहीं हुआ तो अभी भी मुझे k को सिलेक्ट करना है, बट चॉइसेस n-1 है। सो n-1 ck, तो कहने से इन दोनों का एडिशन इज गोइंग टू बी nck. Total ways of selecting k objects out of n distinct objects is going to be n-1 ck-1 plus n-1 ck, and we are done. ठीक है, तो मैंने इस सिचुएशन को इसमें दो तरीकों से काउंट किया, nck, total number of ways of selecting k objects out of n is n-1 ck-1 plus n-1 ck, and we are done. I hope this is clear. तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और सिचुएशंस मैं तुम्हें अवगत करवाऊंगा, तो यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल। हो सकता है अभी तक इस तरह के क्वेश्चन तुमने नहीं देखे हो, तो यू माइट फेस प्रॉब्लम्स इन अ फर्स्ट फ्यू प्रॉब्लम्स, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट इज बाउंड टू बिकम इजी। चलो, लेट अस मूव ऑन। NCK is equal to NCn-k. This is very obvious. This is the property of NCR, right? बट इसको कैसे प्रूव करें? ठीक है, ऑफ कोर्स फॉर्मूले के जरिए हम प्रूव कर सकते हैं। NCK is n factorial by k factorial n minus k factorial. n factorial वो हो जाएगा n minus k factorial into k factorial. So we can prove this using formula, but again, how do we prove this using combinatorial argument? NCK, so there are n objects, O1, O2, O3, and so on up to On. There are n objects, and we need to select k. We need to select k, which can be done in NCK ways. There are n objects, और हमें k objects को select करना है, and ये कितने तरीकों से कर सकते हैं? हम NCK तरीकों से कर सकते हैं। कहना से ये करने के बजाय हम क्या करते हैं, जिन लोगों को select करना उनको छोड़ो, जिन लोगों को डीसेलेक्ट करना, जिनको select नहीं करना उनको काउंट कर लो। तो बेसिकली अगर मुझे k ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, सपोज कोई भी k ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सो देयर वुड बी n minus k ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, एक तरह से कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट व्हिच इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, सपोज मुझे तीन लोग हैं ए बी सी, तीन लोग में से मुझे दो लोग चाहिए। ठीक है, तो यहां तो तीन में से दो सिलेक्ट कर लो, या फिर दो सिलेक्ट करने के बजाय टोटल तीन लोग थे, एक आदमी को सिलेक्ट करो जो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो विच कैन बी डन इन 3C1 वेज। तो ऑब्वियसली बात है, जो बाकी बचे वो सिलेक्ट हो गए, सो दे हैव टू बी इक्वल, एज सिंपल एज दैट। तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग k ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट n minus k objects which are not to be selected. सोचने का तरीका है और कुछ नहीं, which can be done in NC n minus k ways. So of course these two have to be equal. So हमने NCR is equal to NC n minus r को combinatorial argument से prove कर दिया है। I hope this is clear. Moving on, next question. NC0, NC1 plus NC2 up to NCn is equal to 2 to the power n. Again, this is an argument which is to be remembered. इसको याद रखने का है भाई। NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCn is 2 to the power n. This is to be remembered. अब इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, या सॉरी, इसको किस तरीके से combinatorial argument से प्रूव कर सकते हैं? How do we prove this using combinatorial argument? Of course, one of the ways to prove this is binomial theorem, but again, we are not going to use binomial. We are going to use combinatorial argument to prove this. Now, how do we do this? So basically, imagine there are n objects again, O1, O2, O3, and so on, On objects. So these n objects are lying in a supermarket. In a supermarket. ठीक है, so supermarket को Reliance Fresh का स्टोर, बिग बास्केट का स्टोर, कोई भी एक रिलायंस मतलब फ्रेश का स्टोर है, सुपर स्टोर है, राशन स्टोर है, वहां पर ये n ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट बाय द वे। तुम्हारे हाथ में एक बास्केट दे दी गई, यू आर गिवन अ बास्केट टू शॉप। द क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन यू शॉप? हाउ मेनी वेज टू शॉप? शॉप मतलब टू कम आउट of that particular shop.
उस शॉप से बाहर आने के कितने तरीके हैं. यू कैन कम आउट एम्प्टी हैंडेड ऑल्सो. ठीक है. अब इसी चीज को काउंट हम दो तरीकों से करेंगे. एक तो करेंगे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो पहले मैं बास्केट को लेके ऑब्जेक्ट 1 के पास गया. अब ऑब्जेक्ट 1 के पास दो चॉइसेस थी, या तो वो बास्केट में नहीं आएगा 0, या फिर आ जाएगा 0 1. तो बास्केट में नहीं आएगा को मैं 0 बोल रहा हूं और आ जाएगा को 1, बाइनरी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो ऑब्जेक्ट 1 हैज 2 चॉइसेस, object 2 has 2 choices, 0 1, 3 has 2 choices, 4 has 2 choices, n has 2 choices. So total number of choices with overall n objects is going to be 2 to the power n, which is the right hand side of the equation. अब हम बास्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. बास्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कैसे करें? शॉप करके बाहर वापस आना है, तो मैं क्या मेरा नजरिया क्या रहेगा बास्केट के जरिए? या तो बास्केट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब n में से कोई भी ऑब्जेक्ट ना सेट करने के NC 0 वेज हैं, एक ही तरीका है. या फिर बास्केट में एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट होगा, या फिर बास्केट में एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, या 3 होंगे, या फिर सारे के सारे n ऑब्जेक्ट, पूरी दुकान खाली करके बास्केट बाहर आ रही है. सो कहने से ये दोनों तरीके शॉपिंग के हैं. एक तरीका है ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू और एक तरीका है बास्केट का पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हमने कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ से इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया. हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज. ठीक है. ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव हो जाता है, बट अगेन वी यूज्ड कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ आर्गुमेंट टू प्रूव दिस थिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. तो यही चीज है यार. ठीक है. तो ये इसको अगर ब्रॉडर लेवल पे ले जाओ तो अगेन थिंग्स बिकम रियली सिंपल. एंड अभी तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आगे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, उनको भी हम बहुत इजीली कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ से प्रूव कर सकते हैं. Let us do this. Show that 2nC2 is 2 times nC2 plus n square. तो दोबारा लिख लेता हूं. So basically 2nC2 is 2 times nC2 plus n square. Now ये एक of course आइडेंटिटी है, इतनी कॉमन आइडेंटिटी नहीं है तो बच्चे इसको याद नहीं रखते, बट अगेन ये बहुत आसानी से कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ बिना उसके भी हो जाएगी. तुम क्या करो, फॉर्मूला लिख दो 2nC2 2n into 2n minus 1 by 2 एंड यहां पर कैलकुलेट करोगे तो अपने आप इक्वल आ जाएगा. बट अगेन इस चीज को कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ से कितना अमेजिंग तरीके से हम प्रूव करते हैं देखो. सो 2nC2, तो एक साइड ना हमेशा बहुत ऑब्वियस चीज बयां करती है. 2nC2 मतलब देयर आर 2n ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन ऑब्जेक्ट 2n, एंड यू नीड टू सेलेक्ट exactly 2 objects which can be done in 2nC2 ways. 2n ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं और तुम्हें एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है which can be done in 2nC2 ways. I hope this is clear. यहां तक क्लियर है. ठीक है. अब इसी चीज को दूसरे तरीके से काउंट करते हैं. अब यहां पर देखो nC2 है, तो हम क्या करते हैं, इन 2n ऑब्जेक्ट्स को ना 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन अप टू ऑब्जेक्ट n, एंड ऑब्जेक्ट n plus 1, ऑब्जेक्ट n plus 2, ऑब्जेक्ट n plus 3 एंड सो ऑन अप टू ऑब्जेक्ट 2n. तो मैंने इन 2n ऑब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक हिस्सा n ऑब्जेक्ट्स का, दूसरा हिस्सा भी n ऑब्जेक्ट्स का. अब यहां से देखते हैं किस किस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हो सकता है. अब यार यहां तो दोनों ऑब्जेक्ट्स उठा रहे ऊपर वाले ग्रुप से, यहां से कोई भी नहीं उठेगा, या दोनों के दोनों यहां से उठा लो नीचे, या एक एक उठा लो. अगर मैं इसकी बात करूं, इसको काउंट करूं, तो इसको काउंट करने के तरीके क्या है, n में से दोनों हिस्से यहां से आएंगे तो n में से कोई 2 ऑब्जेक्ट उठाओगे, n में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उठाओगे. इसको काउंट करने के तरीके क्या है, n में से कोई 2 ऑब्जेक्ट यहां से उठाओगे तो प्लस nC2, या फिर एक ऑब्जेक्ट यहां से एक ऑब्जेक्ट n से, मतलब nC1 into nC1 एंड वी आर डन. सो दिस इज एक्चुअली 2 into nC2 plus n square and we are done. So 2nC2 is 2 times nC2 plus n square using combinatorial argument. कितना इंटरेस्टिंग है यार ये. ठीक है. कोई हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, सिर्फ एक आर्गुमेंट कर रहे हैं कि यार इस सिचुएशन को काउंट करने के 2 तरीके हैं, एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड तरीके बराबर होता है, एक इक्वल टू के राइट हैंड साइड के बराबर होता है. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन, लेट अस डू दिस क्वेश्चन. अब दिस सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट देखो कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं. NCK into KCM is equal to NCM into n minus MCK minus M. Now this looks a bit daunting, bit scary, but है नहीं. सोच के देखो यार, क्या है, there are
n people, p1, p2, p3, pk, pk plus 1 एंड सो ऑन अप टू pn. n लोग हैं टोटल, ऑब्वियसली लोग अलग अलग होंगे. लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. n c k, n में से k लोग सिलेक्ट करने हैं और फिर k में से c लोग, सॉरी k में से m लोग और सिलेक्ट करने हैं. तो सोच के देखो यार, पहले तो हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, k पीपल को मेडल या सर्टिफिकेट देना है. n में से किन्हीं k पीपल को IOQM का सर्टिफिकेट देना है. उन k में से, उन्हीं k में से किन्हीं m पीपल को सिलेक्ट करना है और उनको बोलना है कि RMO लिखो. टोटल n लोगों ने IOQM का एग्जाम लिया. मुझे अगर किन्हीं भी k लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहां पर हम ये नहीं मान रहे कि मैथ्स किसका अच्छा है, मैथ्स किसका, किन्हीं भी k लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उन k लोगों को सिलेक्ट करके IOQM का सर्टिफिकेट दे देना है. उनमें से फिर मुझे m लोग और सिलेक्ट करने हैं. सर्टिफिकेट तो मिल गया, m लोग और सिलेक्ट करने और उनको बोलना है कि यार RMO का एग्जाम लिखो, जाओ RMO का एग्जाम लिखो. तो ये अब हम दो तरीकों से कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. तो पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड n में से k लोगों को सिलेक्ट किया और इनको दे दिया सर्टिफिकेट, सब लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया. n में से m लोगों को दोबारा सिलेक्ट किया, सर्टिफिकेट वालों में से m लोगों को दोबारा सर्टिफिकेट किया और बोला कि जाओ RMO का एग्जाम लिखो. RMO का एग्जाम लिखो, सर्टिफिकेट तो मिल ही गया तुम लोगों को. यह तो एक तरीका हो गया काउंट करने का. दूसरा तरीका इसी चीज को काउंट करने का सिनेरियो क्या होगा, n में से पहले m लोगों को सिलेक्ट कर लो. ये m लोग कौन से हैं, RMO वाले. इनको सर्टिफिकेट भी दे दो भाई, इनको तो सर्टिफिकेट भी देना. तो पहले मैं m लोगों को सिलेक्ट करता हूं जिनको बेसिकली सर्टिफिकेट भी मिलेगा और मेडल भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और RMO लिखने का मौका भी मिलेगा. बचे कितने, बचे n-m लोग. इनमें से बाकी के लोग सिलेक्ट कर लो जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा. तो बेसिकली अगर k पीपल को सिलेक्ट किया और उनमें से r पीपल को RMO लिखने का मौका मिला तो ओनली सर्टिफिकेट वाले कितने हो गए थे लेफ्ट हैंड साइड में, ओनली सर्टिफिकेट. इन बच्चे जिसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिला दैट वर k-m. ओनली सर्टिफिकेट वाले k-m थे. k लोग तो टोटल है जिनको क्या होगा, सर्टिफिकेट भी मिला होगा, इनमें से कुछ बचे मेडल भी होंगे. तो सिर्फ ऐसे बच्चे जिनको सर्टिफिकेट मिला था वो कितने, k-m. तो मैंने पहले क्या कि भाई पहले n में से, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा बता रहा हूं, n में से k पीपल को सिलेक्ट कर लो जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा. सब बच्चों को सर्टिफिकेट मिल गया. अब इन्हीं सर्टिफिकेट वालों में से मैंने k बच्चों को सिलेक्ट किया जो RMO लिखने भेज दिए. इसी को दूसरे तरीके से काउंट करने का तरीका, n में से मैं m बंदे सिलेक्ट कर रहा हूं, m लोग सिलेक्ट कर रहा हूं जिनको RMO लिखने का मौका दे रहा हूं पहले. ऑफ कोर्स उनको बाद में सर्टिफिकेट भी थमा दिया, इन बच्चों को सर्टिफिकेट भी थमा दिया. बचे कितने, बचे n-m बचे. अब मुझे उनमें से वो बच्चे सिलेक्ट करने जिनको मैं सिर्फ सर्टिफिकेट दूंगा, बिकॉज RMO तो लिखने भेज दिए. अब सिर्फ सर्टिफिकेट वाले बच्चे k-m, तो k-m यहां पे सिलेक्ट कर लो. तो एग्जैक्टली सेम चीज हो गई. तो इसी सिचुएशन को मैं दो तरीकों से काउंट कर रहा हूं एंड ये दो तरीके बेसिकली एक कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ के जरिए इक्वल हो गए. ऑफ कोर्स इनको अदरवाइज प्रूफ कैसे कर सकते हैं, nck का वैल्यू, nck is n factorial by k factorial into n minus k factorial, k factorial by m factorial into k minus m factorial. एंड सिमिलरली इसको भी ऐसे ओपन करोगे तो एग्जैक्टली सेम चीज आ जाएगी. बट अगेन कितना ब्यूटीफुल प्रूफ है यार, कितना अमेजिंग प्रूफ है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 + 2 + 3 up to n is n + 1 c2. अब देखो ये AP है, बिना AP के इसका कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ के जरिए आंसर निकाल दें कितना बढ़िया तरीके से. हिंट क्या दिखाई दे रहा है, हिंट ये है n + 1 c2. इसका मतलब कितने लोग हैं टोटल, p1 p2 p3 एंड सो ऑन अप टू pn + 1, n + 1 लोग हैं. और मुझे कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, आई नीड टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 2 पीपल. सो ऑफ कोर्स एक तरीका तो n + 1 c2 वेज है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इस केस में हो गया. अब लेफ्ट हैंड साइड ये 1 + 2 + 3 कैसे बन रहा है.
अब ये काउंट करने का दूसरा तरीका काउंट करने का क्या है? 1 plus 2 plus 3, I have to select exactly 2 people out of these n plus 1 people. अब दो तरीके, दो बच्चे को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? How can I select exactly 2 people? Now, if I'm selecting Pi, Pj, for every j, let us count the number of, for every j where I is less than j. So let us count the number of cases for every j. अगर j का वैल्यू 1 है, हायर नंबर 1 है, तो ऑफ कोर्स 0 केसेस होंगे, हो ही नहीं सकता. अगर j2 है, j2 है तो i के पास एक ही ऑप्शन है, एक ही वे होगा. अगर j3 है मतलब pi pj हायर नंबर 3 है, हायर नंबर 3 है, तो अगर हायर नंबर 3 है तो इसके पास कहने से दो मौके हैं. कौन कौन सा? यहां पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो देयर आर 2 चॉइसेस. अगर j4 है, j4 है, हायर नंबर 4 है, तो पहले के पास 3 चॉइसेस हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, तो 3. ऐसे करते करते लास्ट में अगर j n+1 है तो i के पास देयर आर एग्जैक्टली n वेज, और खत्म हो गया प्रूफ. So 1 plus 2 plus 3 up to n is going to be equal to n plus 1 C2. कितना अमेजिंग चीज है ये. तो यूजिंग कॉम्बिनेटोरिकल आर्गुमेंट वी आर एबल टू प्रूव दिस. एंड इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें, कुछ भी इस तरह की चीज अब जो आती है तो खुद से प्रूव करने की कोशिश किया करो. वन थॉट शुड बी कॉम्बिनेटोरिकल प्रूफ, बिकॉज अगर अब तक तुम मुझे फॉलो कर रहे हो यहां तक, आई एम वेरी श्योर इस पॉइंट तक यू हैव बिकम वेरी कंफर्टेबल विद दीज, एंड तुम्हें सच में मजा आ रहा है. तुमने ये चीज पहली बार पढ़ी है तो इस टाइम पे तुम्हें सच में मजा आ रहा होगा कि यार कितनी बढ़िया चीज है. ठीक है, तो इसी नाप पे एक बार लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि मुझे बता दो कि अभी तक सब कुछ समझ में आया है या नहीं आया. ऑलराइट, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है. 1 into n plus 2 into n minus 1. सो दिस, ये क्वेश्चन यूजली हम सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर करवाते हैं. वी डिस्कस दिस क्वेश्चन यूजली इन सीक्वेंस एंड सीरीज. तो वहां पर तो सिग्मा का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और यहां पर देखो बिना सिग्मा के हम ये बहुत बढ़िया तरीके से निकालेंगे. ठीक है, अब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो ऑफ कोर्स ये है n+2c3. तो ऑफ कोर्स देयर आर कितने लोग? देयर आर n+2 पीपल, pn+1 and pn+2, and you need to select exactly 3, which can be done in n+2c3 ways. राइट हैंड साइड तो खत्म हो गई. लेफ्ट हैंड साइड में किस तरीके से लगाएं? 1 into n. तो लेफ्ट हैंड तरीके से मैं यहां पे कर रहा हूं, लेट pi, pj, pk be 3 selections such that i less than j less than k. कोई भी 3 सिलेक्शन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो. बीच वाला नंबर j है. अब मैं j के हिसाब से केसेस बनाऊंगा. पहला केस जब j 1 है, जब j 1 है तो j अगर 1 है तो ऑफकोर्स यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो छोड़ो इसको. अब J2 के हिसाब से केसेस बनाते हैं. जब J2 है मतलब बीच वाला नंबर 2 है, बीच वाला नंबर 2 है तो यहां पर तो एक ही चॉइस है भाई, 1 ही आ सकता है. एंड यहां पर अगर ये 2 मैंने सिलेक्ट कर लिया तो तीसरा केस कुछ भी हो सकता है. तो बेसिकली मैं किस तरीके से कैसे बना रहा हूं? डिपेंडिंग ऑन द मिडिल नंबर. तो तीसरा केस के पास ऑप्शंस क्या है? P3, P4, P5, Pn+2. तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस n+2, n+2 -3 + 1, दैट इज n ऑप्शंस. इसके पास n ऑप्शन. सो जब J2 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस है 1 into n. अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है. J अगर 3 है, बीच वाला नंबर 3 है, बीच वाला नंबर अगर 3 है तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है. यहां पर अगर 3 आ गया तो यहां पर P4 से लेके 4 5 6 से लेके अप टू n+2 चॉइसेस हैं. 4 से लेके n+2 कितने नंबर्स हो गए? n+2 -4 + 1, दैट इज n-1. सो अगर J3 है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 2 into n-1 एंड सो ऑन. अगले में 3 into n-2 होंगे, एंड करते करते लास्ट में n into 1 आ जाएंगे. ये वाला केस कौन सा है? ये वाला केस वो है जब J का वैल्यू n है, n+1 है, सॉरी, जब J का वैल्यू n+1 है. J अगर n+1 है, सोच के देखो, J अगर n+1 है मतलब 3 सेट, यहां पर n+1 आ गया, तो यहां पर n चॉइसेस है, 1 से लेके n तक कुछ भी आ सकता है, एंड यहां पर एक ही चॉइस रहेगी n+2. सो लास्ट में n into 1. सो 1 into n plus 2 into n-1 plus 3 into n-2 up to n into 1 becomes equal to n+2 C3 and we are done.
राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसके अंदर अगर सिग्मा से करोगे, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Commutative proof is very easy and it saves a lot of your time and increases your understanding also. Okay, sigma k varies from 1 to n. तो basically क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? K varies from 1 to n. K times ncn. This is n times 2 to the power n minus 1. इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो 1 into nck है. 1 into nc1 plus 2 into nc2 plus 3 into nc3 n into ncn is n into 2 to the power n minus 1. इस आर्गुमेंट को हमने प्रूव करना है. We need to prove this argument nc1 plus nc2 plus nc3 up to ncn is n into 2 to the power n minus 1. अब किस तरीके से इस आर्गुमेंट को प्रूव कर सकते हैं? हाउ डू वी प्रूव दिस? ठीक है, ओके. अब देखो गाइस, यहां पर मैं ये सीधा ये आर्गुमेंट दिखा देता हूं तुम लोगों को. ठीक है, तो बेसिकली के we need to select a team of k out of n and choosing one captain out of those k for that team. तो बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि n टोटल प्लेयर्स हैं, मुझे एक टीम बनानी है. अब टीम में एक प्लेयर हो सकता है, दो प्लेयर हो सकते हैं, तीन प्लेयर हो सकते हैं, चार प्लेयर हो सकते हैं, टीम में n प्लेयर्स भी हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स की टीम हो सकती है. बट उस टीम का एक कैप्टन भी होना चाहिए. आई होप द सिचुएशन इज क्लियर. तो इसी सिचुएशन को हम दो तरीकों से काउंट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू काउंट एग्जैक्टली दिस थिंग इन टू डिफरेंट वेज. ठीक है, यहां पर एक मिनट, चलो. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर n प्लेयर्स p1 p2 p3 एंड सो ऑन अप टू pn -1 अप टू pn. ये n प्लेयर्स हैं. तो बेसिकली द आइडिया इज to make a team of how so many players. कितने भी टीम मेंबर्स का टीम बना सकते हो, एंड उस टीम बनाने के लिए बाद एक कैप्टन भी होना चाहिए. अब इसको कैसे कर सकते हैं? एक तरीका क्या है कि अगर एक मेंबर की टीम है, तो ऑफ कोर्स उसका एक ही कैप्टन होगा, कैप्टन की एक ही चॉइस है. या फिर दो मेंबर्स की टीम है, एन में से कोई भी दो बंदे सिलेक्ट किए, उन दो मेंबर्स की टीम है, बट उन दो में से कैप्टन बनाने का एग्जैक्टली दो चॉइसेस हैं. दो बंदे हैं तो ऑफ कोर्स देयर आर टू चॉइसेस फॉर द कैप्टन. उनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है, 2C1 बेसिकली. या फिर तीन बंदों की टीम है एंड उन तीन में से किसी एक बंदे को कैप्टन बनने का मौका मिलेगा. या फिर चार बंदों की टीम है एंड सो ऑन. या फिर n लोगों की टीम है, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, NCN एक ही तरीका है, बट कैप्टन उन n में से किसी एक बंदे को मिलेगा, तो NC1. राइट, तो ये तो राइट साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी. राइट हैंड साइड इज n into 2 to the power n minus 1. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, पहले हम कैप्टन चूज कर लेते हैं. चूज कैप्टन फर्स्ट. भाई कैप्टन को पहले चूज कर ले, तो n में से कोई एक बंदा उठा लो जो कैप्टन बन गया. सपोज ये कैप्टन बन गया. अब कोई प्लेयर हो तो ये कैप्टन तो आ गया, वो प्लेयर भी है. अब बाकी के जो n-1 प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स टीम में हो ना हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. सो कैन आई से एवरी अदर ऑफ दीज n-1 प्लेयर्स हैज टू चॉइसेस, ईदर ही इज इन द टीम और ही इज नॉट. तो P1 के पास दो ऑप्शंस हैं, टीम में होगा नहीं होगा. P2 के पास दो ऑप्शंस हैं, P3 तो सिलेक्ट हो गया इस केस में. P4 के पास दो ऑप्शंस हैं, P5 के पास दो ऑप्शंस हैं. तो एवरी अदर पर्सन हैज एग्जैक्टली टू चॉइसेस. Every n-1 other person has two choices. So n into 2 to the power n-1. How interesting this is. अब ये चीज को हम बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव करते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग लॉट ऑफ अदर मेथड्स, बट कॉम्बिनेटोरिकल आर्गुमेंट से एक तरीके से तुम्हें सोचना है, एक सिचुएशन सोचनी है जब तुम इस तरीके से दो ऐसे सिचुएशन सोचते हो जहां पे दो तरीकों से काउंट करके उनको इक्वेट करते हो. एंड वी आर डन. चलो मूविंग ऑन. Prove that 4n factorial is divisible by 2 to the power 3n into 3 to the power n for all n belonging to natural numbers. n natural numbers है तो 4n factorial हमेशा 2 to the power 3n
into 3 to the power n से divisible होगा. In other words, 4n factorial upon 2 to the power 3n into 3 to the power n is always an integer. ये एक हमेशा इंटीजर होगा. 4n factorial by 2 to the power 3n 3 to the power n is always going to be an integer. This is what we need to prove. इसको थोड़ा सा और देखते हैं. 4n factorial upon 2 cube into 3 raised to the power n. 4n factorial upon 24 to the power n. And 24 incidentally is nothing but 4 factorial to the power n. So 4n factorial, so in other words, ये जो situation है, this is 4n factorial by 4 factorial, 4 factorial, 4 factorial, 4 factorial n times. हमें प्रूव करना है कि ये एक इंटीजर है. और ये एक्सप्रेशन हम बहुत बार यूज कर चुके हैं. सोच के देखो, सोच के देखो. देयर आर 4 ऑब्जेक्ट वंस, 4 ऑब्जेक्ट टूज. ऑब्जेक्ट टू 4 हैं सेम काइंड के. 4 ऑब्जेक्ट थ्रीज एंड सो ऑन 4 ऑब्जेक्ट एंड्स. So there are n kind of objects, each having 4 times, each occurring 4 times. So there are 4 object ones, 4 object twos, 4 object threes, and 4 object n's. So total of 4n objects. Total of 4n objects. Can I say, let us try to arrange them. Try to arrange them in a row. This can be arranged in 4n factorial divided by 4 factorial because these are 4 same, 4 factorial because these are both same, 4 factorial, 4 factorial. ये सारे के सारे इतने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं एक लाइन के अंदर. And of course, total number of ways of arranging is always going to be an integer. अगर कुछ set of objects हैं, उनको कितने तरीकों से arrange कर सकता हूँ, वो हमेशा integer होगा. So that means this would always be an integer because this represents the total number of ways of arranging these 4n objects, out of which these 4 are of one kind, these 4 are of second kind, these 4 are of third kind, and these 4 are of nth kind. And we are done. तो देखो number theory को किस तरीके से मैं combinatorial proof से relate कर पा रहा हूँ. How amazing this is. I hope this is clear to everyone. All right. Okay, let us do this also. NC 0 whole square. This is again a standard result which is to be remembered. NC 0 whole square plus NC 1 whole square plus NC 2 whole square is equal to up to NCN whole square is 2NCN. Of course, the right hand side is going to give us a lot of n's. So basically there are 2n people, P1, P2, P3, P4 and so on up to P2n. And of course, we need to select exactly n people, which can be done in 2n Cn ways. 2n Cn तरीकों से हम इसको select कर सकते हैं 2n में से n लोगों को. अब यही चीज मैं अलग तरीके से काउंट करने वाला हूं. ठीक है. अब मान के चलो कि 2n लोग हैं, इनमें से n मेल्स हैं. लेट्स से P1 से लेके Pn देयर आर मेल्स एंड n फीमेल्स हैं. n plus 1, Pn plus 2 and so on up to P2n. These are females. So n boys, n girls and total of 2n objects we need to select exactly n objects. ठीक है. ये तो ये हो गया. अब मैं इसी चीज को दो तरीकों से करूंगा बिकॉज एन सी है तो मेरे को एन एन के दो ग्रुप में डिवाइड करना पड़ा था. सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज. एक तरीका तो क्या है, यहां से 0 यहां से n उठा लो, यहां से 1 यहां से n-1 उठा लो, 2 n-2 उठा लो एंड सो ऑन अप टू यहां से n एंड यहां से 0 उठा लो. सो लेट अस काउंट दिस. अगर यहां से 0 यहां से n उठाता हूं, टोटल n ये है, n ही ये है. सो दिस कैन बी डन इन nc0 इंटू ncn वेज. n से 0 n से ये वाला केस nc1 इंटू ncn-1 वेज, nc2 इंटू ncn-2 वेज एंड लास्ट में ncn इंटू nc0 वेज.
और हमने ये पढ़ लिया है अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो यहां पर ना जितने भी सेकंड चीजें इसको 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 ये फॉर्मूला लगा दो। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी NC0, दिस इज गोइंग टू बी NC1, दिस इज गोइंग टू बी NC2 and this is going to be NCN and we are going to be left with exactly what has been asked। तो यहां पे राइट हैंड साइड में हो जाएगा NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू NCN का होल स्क्वायर and we are done। So 2NCN is NC0 whole square plus NC1 whole square plus NC2 whole square up to NCN whole square। I hope this is clear to all, right? So we have been able to prove this amazing result which we normally use in binomial theorem and prove using binomial coefficients using combinatorial argument। Alright guys, तो अब 11 क्वेश्चंस अब कर लिए। आई एम श्योर काफी ज्यादा फील आ चुकी है तुम लोगों को। यू हैव बीन एबल टू गेट द ओवरऑल फील ऑफ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन। इस टाइम पे मुझे कमेंट करके बता दो इफ यू डिड लाइक दिस सेशन एंड इस तरह के सेशन तुम्हें और चाहिए टू ओवरऑल इंक्रीज योर ब्रॉडर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक। ये तो कॉमेंटोरिक्स है। सो होमवर्क क्वेश्चन है, तुम्हारा एक और काम है इस होमवर्क क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है एंड कोशिश करना है कि इसका खुद से एक सिचुएशन लिखो कमेंट करके एंड उसको दो तरीकों से प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट अगेन आई वुड वांट टू सी कितने लोग इसको आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 0 to n NCi into sigma j वेरीज फ्रॉम 0 to n minus i n minus 1 Cj is 3 to the power n, right? So this is a bit tricky, so again I'll write it। So sigma I varies from 0 to n NCi sigma j varies from 0 to n minus 1 n minus ICj। यहां में प्रूफ करना है 3 to the power n के बराबर है, ठीक है? चलो I'll give you a hint। Imagine there are objects O1, O2, O3 and so on up to On। And imagine करो, so 3 to the power n कैसे आएगा? Every object has let's say 3 choices, either to put them in basket A or basket B or basket C। So this is one situation। जरूरी नहीं कि तुम्हारा जो आर्गुमेंट होगा तो इसी सिचुएशन पे होगा, तुम अपनी तरफ से कोई भी एक और सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो। बट अगेन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई जस्ट मेड देम स्टार्ट, ठीक है? तुम अलग से कोई और सिचुएशन भी इमेजिन कर सकते हो बट अगेन ट्राई टू think more upon it and try to answer this। Of course the answer is there in the next slide। इसको मैं कर तो रहा हूँ forward but इसको अभी देखना मत, right? So this you can see this after pausing but again try to answer this without using this। If you like the session do like it, comment it, subscribe it and also guys combinatorics का proof अगर तुम इसको बहुत ही डिटेल में करना चाहते हो, इतने अमेजिंग तरीके से करना चाहते हो, सो दिस इज द कोर्स जो हम स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स, ग्रुपिंग्स, सर्कुलर अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट, पीएचपी, पिजन होल प्रिंसिपल, रिकरेंस रिलेशन, इनवेरिएंस, कलरिंग टेक्निक्स, पैरिटी, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स द फर्स्ट 3 क्लासेस, पहले जो 3 क्लासेस होंगी उसमें ये सब नहीं होगा। ये ऑफिशियल क्लासेस जो हैं वो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। फर्स्ट 3 क्लासेस आर व्हाट वी कॉल थॉट पजल्स ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स। तो हम एक पजल सिचुएशन देंगे जहां पे थॉट्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे तुम लोगों की। तो दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस। ऑफ कोर्स वी आर आल्सो गोइंग टू गिव यू 3 RMO लेक्चर्स अपार्ट फ्रॉम दिस। सो 21 लाइव प्लस 3 RMO लेक्चर्स प्लस 3 थॉट पजल्स। सो टोटल ऑफ 27 लेक्चर्स, ठीक है? बेसिक साइकोम लेवल, ये सब चीजें तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो प्राइस इज 2700 रुपीज। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर तुम जा सकते हो, लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड इस कोर्स को ले सकते हो। तो दिस कोर्स इज गोइंग टू श्योरली इंक्रीज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स। आई कैन गारंटी दैट। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 7th, 8th, 9th एंड 10th। बिकॉज मैं हमेशा ये मानना हूँ पहली बार ये कॉम्बिनेटोरिक्स जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए तुम्हें क्लास 11 में बताया जाता है। बट अगेन ये ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9th के बच्चों को सिखा देनी चाहिए। बिकॉज दिस इज वन थिंग विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लॉजिक एंड लॉजिक का पूरा कोर्स है। चलो गाइज टेक केयर,
This is my Telegram ID. You can get in touch with me at this Telegram ID, and this is our final aim, that is to win gold for India. I hope you've enjoyed. Like, share, subscribe. God bless you. Bye, everyone.